Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for +1 Arts Political Science, and the name of the chapter is Peace. Let us study the topic Forms of Structural Violence. Colonialism, in the sense of prolonged and direct subjection of a people to alien rule, is now a rare phenomenon. कॉलोनियल रूल फिनिश हो चुका है, ये एक रेयर फिनोमिनन है, बट जो ऑनगोइंग पैलेस्टीनियन स्ट्रगल अगेंस्ट इजरायली डोमिनेशंस शो दैट इट हैज़ नॉट डिसअपेयर्ड कंप्लीटली. कहने को ये कहा जाता है कॉलोनियल रूल ख़त्म हो चुका है, सब कंट्री जो हैं अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, कोई भी किसी के प्रेशर में नहीं है. बट अगर हम पैलेस्टीनियन स्ट्रगल की बात करें इज़राइल डोमिनेशंस के अगेंस्ट, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये फिनोमिना पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं हुआ. जो फॉर्मर कॉलोनीज यूरोपियन imperialist countries जो है are yet to recover completely from the forms of manifold exploitation they suffered during the colonial rule. Racism, communalism ये इन्वॉल्व करती है stigmatization and oppression of entire racial group और community. अगर हम बात करें रेशियल कम्युनिटी की, और या नोशन दैट ह्यूमैनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस इज साइंटिफिकली स्पूरिशियस. ये सिर्फ यूज़ की जाती है टू जस्टिफाई इंसीडियस प्रैक्टिसेस सच एज नीग्रो स्लैवरी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. वो थी अंटिल 1865 में. उसी तरह से स्लॉटर ऑफ ज्यूज इन हिटलर्स जर्मनी, apartheid, a policy followed until 1992 by the white control governments in South Africa, which treated the majority black people of the country second class citizens. जो वाइट लोग थे उन्होंने ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करी. उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता था. उनको पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स, बसेस, रेलवे, होटल, रेस्टोरेंट्स वहाँ पर बैठने की परमिशन नहीं दी जाती थी. कहते हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है स्टिल कंटिन्यूज इन द वेस्ट एंड इज़ नाउ ऑफन डायरेक्टेड अगेंस्ट इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. जो कम्युनलिज्म है may be seen as a South Asian counterpart of racism, where the victims जो हैं minority religious groups के ज़्यादा पाए जाते हैं. जो psychological और tangible harm suffered किया है by the victims of violence, ये often create करता है grievances that persist over generations. Sometimes they give rise to fresh bouts of conflicts when provoked by some incident or even remark. We have examples of long-term grievances being harbored by communities against each other in South Africa, such as those stemming from the violence unleashed during the partition of British India in 1947. A just and lasting peace can be attained only by articulating, removing the latent grievances and causes of conflict through process of dialogue. डायलॉग मीन्स आपसी बातचीत से इन चीज़ों को दूर करके पीस को बनाया जा सकता है. ongoing attempts
to resolve the problems between India and Pakistan also include promoting increased contacts among people in all walks of life. बहुत कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह से हमारी और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई ना हो, क्योंकि वार जो है एक गुड रिजल्ट नहीं प्रूव करती. वार से डिस्ट्रक्शन होती है. However, we have noted that violence जो है does not originate merely within the individual physique, but it also rooted in certain social structures. उसके लिए elimination of structural violence necessitates the creation of just and democratic society. Peace, understood as the harmonious coexistence of contented people. It would be a product of such a society. It can never be achieved once and for all. Peace is not an end state, but a process involving an active pursuit of moral and material resources needed to establish human welfare in the broad sense of the term. Excuse me. पीस बनाना. पीस तभी आ सकती है अगर हम वायलेंस को एलिमिनेट कर देंगे. वायलेंस एलिमिनेट होगा तो ही पीस बनेगी. इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें. जो चीज़ आपस में बैठ के डायलॉग की तरह से एक दूसरे के साथ सूटेबल हो सकती है, रिजॉल्व कर सकते हैं हम प्रॉब्लम्स को, वो वॉर में नहीं है. क्या वायलेंस एवर प्रमोट पीस? ये एक क्वेश्चन है. इट हैज़ बीन असर्टेड दैट वायलेंस इज एन इवल. ठीक है. कई बार नेसेसरी प्रील्यूड द ब्रिंगिंग अबाउट पीस. इसमें ये कहा जाता है कि इट आर्ग्यू दैट ट्रेंड्स एंड ऑपरेसर्स जो हैं कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू हार्म टू पॉपुलेस ओनली बाय बीइंग फोर्सिबली रिमूव्ड. या ये भी कह सकते हैं कि जो लिबरेशन स्ट्रगल्स हैं वो लोगों को ऑप्रेस करके भी कुछ वायलेंस के मेथड यूज़ करके लोगों को ऑप्रेस किया जा सकता है. However, well-meaning could turn out to be self-defeating. Once deployed, it would tend to spin out of control, leaving behind a trail of death, destruction. इसलिए यही रीज़न है कि जो पैसिफिस्ट हैं, जो कंसीडर करते हैं पीस टू बी अ सुप्रीम वैल्यू, इसलिए वो एक मोरल स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट द यूज़ ऑफ वायलेंस इवन फॉर अटेनिंग जस्ट एंड. वो ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ऑपरेशन फाइट ऑपरेशन, द नीड टू फाइट ऑपरेशन. वो एडवोकेट करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ लव, ट्रूथ टू विन द हार्ट्स माइंड ऑफ ऑपरेसर्स. इसमें एक कार्टून है जिसमें ये बताया गया है द वे टू ब्रिंग अबाउट द पीस इज़ टू पनिश द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस. ये ऐसा होना चाहिए? नो, वायलेंस शुड नॉट बी यूज्ड टू काउंटर वायलेंस. वी कैन ब्रिंग अबाउट लास्टिंग पीस बाय स्ट्रेसिंग ऑन पीसफुल मीन्स. नाउ दैट यू साउंड लाइक द चैम्पियन ऑफ पीस, टेल मी, are you using similar peaceful methods to deal with your younger brothers, or is the thrashing him policy being pursued? जो चीज़ वायलेंस से नहीं हो सकती उसको मोरल वैल्यू से सॉल्व करके पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है. लेट अस थिंक. खमेर रोच राइम जो कंबोडिया में थे, एक पर्टिकुलरली हॉरिफाइंग एग्जाम्पल है काउंटर प्रोडक्टिव नेचर ऑफ रेवोल्यूशनरी वायलेंस. इसमें क्या हुआ? आउटकम ऑफ इंसर्शंस लेड बाय पॉल पोट, द राइम sought to institute a communist order, ठीक है, geared to the liberation of the oppressed peasantry.
जो पीजेंट्स उठ खड़े हुए थे उनको दबाने के लिए ये चला था। ड्यूरिंग 1975 से 1979 तक रहा। राइन ऑफ टेरर था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.7 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। जो कंट्री की पॉपुलेशन थी 21% थी। ये सबसे ब्लैकेस्ट ह्यूमन ट्रेजिडी थी प्रीवियस सेंचुरीज में। सिस्टमैटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ वायलेंस बाय रेडिकल मूवमेंट्स टू अटेन अपेरेंटली डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स, हमेशा ड्रामेटिकली अपीलिंग कॉन्सिक्वेंसेस। बट इस प्रोसेस में ये अज्यूम किया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिजल्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हम बात करें नेशनल लिबरेशन फ्रंट, अल्जीरियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यूजिंग वायलेंट मीन्स, लेकिन it liberated the country from the yoke of French imperialism 1962. FLN जो था degenerated into authoritarianism and triggered a backlash in the form of Islamic fundamentalism. ये ज़रूरी नहीं है कि पीस को बनाने के लिए वायलेंस का लिया जाए जोर, लेकिन कई बारी किसी के प्रेशर में जो कंट्री रह रही है ऑप्रेसिव हो रहे हैं, वहाँ पर कंट्री को इंडिपेंडेंट दिलवाने के लिए वायलेंट होना ही पड़ता है। वायलेंट के बाद ही पीस मिल सकती है। यहाँ तक अगला लेक्चर मैं कल स्टार्ट करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट।